A truss is a structure that consists of members organized into connected triangles. See, this is the information about what is truss. So that the overall assembly behaves like a single object. Many triangles are, what is it? They are connected together and they behave as if it's a together single unit. You have seen this near the railway bridges. जहाँ रेलवे ब्रिज होता है वहाँ पर आपने देखा होगा इस तरह के स्ट्रक्चर को. तो ये सारा स्ट्रेस के बारे में, आप उसके बारे में स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है. आप फिगर को लेके परेशान मत हो. ओके. Struts are most commonly used in bridges, roofs and towers. The image of triangular portion of the graphical paper is as shown in the adjacent figure with scale factor 1 unit is equal to 0.5 meter. Now children, the first paragraph in this CBQ type question says the information about what is a truss. Information about what is a truss, and he has shown some graphical figure about it. You need not have to stress upon what is truss because it has nothing to do with our answer. Only information it is there. Now you can see the same truss has been drawn in form of a triangle, right? The next question, what follows, is very important for us. And remember children, as I told you, this figure is from coordinate geometry. I keep on telling you many times that at least I feel from the basis of the standard and basic question paper that one question on coordinate geometry is expected. I personally feel like that. So prepare well for your examinations. Now here the question reads, let us read the first question. The first question reads, based on the above information, answer the following question. Now what is asked to you? Find the distance between R and S. Now children, here is R and here is S. Now if at all you are not able to solve the problem also, if you can read this sentence, find the distance. Which formula you are going to apply? Distance formula. You are going to apply distance formula. Because distance is speaking about distance. So at least I am telling you the techniques. If you feel that sir, the figure is very difficult sir, I am getting stressed by seeing the truss. If that is the case, then in that case at least after reading the sentence distance, you should be able to write the distance formula. So what is asked is, what is the distance between R and S? Let us come to the point R. What is the coordinate of R, you see? Yeah, it is at a distance of 6 from x-axis and y-axis से कितने दूरी पर है? 9. So what I will write here first is R is 6 and 9. What is S? What is S? How much is S? 9. See, 9 is x. What is it? 9 and 2. Sorry. So now, once you start writing the coordinates, your marks will start counting. आपने कुछ कोऑर्डिनेट लिखा, बाद में आपने लिखा कि सर RS के बीच में डिस्टेंस उन्होंने पूछा है सर, तो RS is equal to how much? Under root, what is it? x2 minus x1 whole square plus what is it? y2 minus y1 whole square. Okay. So RS is equal to what? RS is equal to 9 minus 6 whole square plus what is it? 2 minus 9 whole square. So this is equal to RS means what? 3 square plus minus 7 square, and that's equal to 9 plus under root 9 plus 49, and that's equal to RS is equal to how much? 58. Under root 58 units. I'm sorry. It should be under root 58 units. But remember, the correct way to answer is, what he says is 1 unit is equal to how much? 1 unit is equal to 0. एक यूनिट कितना बता रहा है वो 0.5 मीटर. तो एक्चुअली अगर आपको डिस्टेंस चाहिए बच्चों, तो सही तरीका ये होगा कि डिस्टेंस इज इक्वल टू रूट 58 मल्टीप्लाइड बाय 0.5, दैट इज 0.5 इंटू रूट 58. यहां पर भी यूनिट्स मीटर दिया है क्या?
मीटर दिया है तो मीटर आप लिख सकते हो। एक्चुअल आंसर इज एक्सपेक्टेड दिस वे, क्योंकि यूनिट्स के दे डिड नॉट आस्क यू हाउ मच यूनिट्स, दे हैव आस्क्ड यू व्हाट इज द डिस्टेंस। इफ यू राइट रूट 58 यूनिट्स, that means you are not given the distance, you are given the units. You are given the units. And read the question carefully. The question clearly states that distance कितना है। तो एग्जाम में आप इसको भूलिए मत, 0 पॉइंट मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, मगर एटलीस्ट ये आपको लिखना जरूरी अनिवार्य होगा। Am I clear? Am I clear? जब भी इसका प्रॉब्लम आता है। नेक्स्ट आता है व्हाट इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स आर एंड टी। तो देखो प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं कर रहे हो तो एटलीस्ट यू कैन सी दैट दिस सेंटेंस यू कैन सी मिड पॉइंट। कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे आप? या व्हाट इज दैट मिड पॉइंट फॉर्मूला? यस, x1 plus x2 by 2 y1 plus y2 by 2, isn't it? x1 plus x2 by 2 y1 plus y2 by 2। देखो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, भले आपको स्ट्रेस क्या है पता नहीं है, आप उसको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन देखो क्या है, मिड पॉइंट आपको पूछा है, मिड पॉइंट फॉर्मूला सभी को आता है, एवरीबॉडी नोज द मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो डरने की क्या जरूरत है। इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि डोंट गेट स्ट्रेस्ड, बहुत सिंपल है। तो अभी आर और एस का मिड पॉइंट चाहिए तो हम वहां पर जाएंगे जहां पर आर है। तो यहां पर आर कहां पर है हम देखते हैं, यहां हम आर की तरफ आ गए। व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ आर ऑलरेडी हमने वहां नोट किया है, तो सेकंड टाइम वेस्ट मत कीजिए टाइम, एग्जाम में टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ऑलरेडी अपने आर का कोऑर्डिनेट नोट कर लिया है तो डोंट सर्च फॉर इट, डायरेक्टली वी कैन गेट हियर आर इज हाउ मच। दीज आर सिंपल टेक्निक्स टू सेव टाइम, इसमें टाइम वेस्ट मत करो। आर ऑलरेडी आप जानते हो, हाउ मच इट इज, आर इज इक्वल टू हाउ मच, 6 and 9। देन व्हाट एल्स यू वांट, मिड पॉइंट ऑफ आर एंड टी। तो टी कहां पर, यहां पर है टी। व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ टी, एक्स एक्सिस से 3 है, वाई एक्सिस से ये है, तो t का होगा 3 and 2, 3 and 2। तो आप यहां पर लिखोगे मिड पॉइंट ऑफ आर टी, मिड पॉइंट ऑफ आर टी इज इक्वल टू x1 प्लस x2 by 2 डिवाइडेड बाय y1 प्लस y2 by 2। ओके ओके, तो अब x1 प्लस डायरेक्टली आप चाहे तो लिख सकते हो 3 प्लस 6 कितना होता है रे, 9 by 2, और 9 प्लस 2 कितना होता है, 11 by 2। और कोशिश करो कि इसको डेसिमल पॉइंट में आंसर रिपोर्ट करो आप, 4.5, 9 by 2 कितना होता है 4.5, और ये 5.5। तो देखो क्वेश्चन के अंदर ही आंसर है, जहां डिस्टेंस पूछा है वहां पर डिस्टेंस फॉर्मूला है, जहां मिड पॉइंट पूछा है वहां पर मिड पॉइंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है इफ AXY इज अ पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम S and T। इक्विडिस्टेंस की जब बात आती है तो इसका मतलब ये हो गया कि AXY और S and T क्या हो रहा है, समान दूरी पर है। क्या दिया है, AX और क्या दिया तुमको, Y, और इक्विडिस्टेंट फ्रॉम व्हाट, पॉइंट S, और दूसरा क्या है, पॉइंट S और पॉइंट T। बच्चों इक्विडिस्टेंट का मतलब होता है AS इक्वल टू 80, सिंपल सी बात है, AS इक्वल टू 80। तो इक्विडिस्टेंट का मतलब होता है AS इक्वल टू 80। तो पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहां पर S का कोऑर्डिनेट देखते हैं हम फिगर के अंदर। S का कोऑर्डिनेट फिगर के अंदर, S का कोऑर्डिनेट यहां पर फिगर के अंदर आप देख लो, कहां पर S, S है आपका 9 और 2। तो S को मैं लिखूंगा यहां पर 9 और 2। और नेक्स्ट आता है T, T कोऑर्डिनेट यहां पर है, 80 ले लिया। आप सेकंड टाइम फार्मूला लिखना है क्या सर, मत लिखो, टाइम वेस्ट मत करो, सेकंड टाइम फार्मूला लिखने में टाइम वेस्ट मत करो। तुमको AS कहां है ना बच्चों, तो डायरेक्टली x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, या x2 माइनस x1 यानी 9 माइनस x होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस क्या, 2 माइनस y होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर से x2 माइनस x1 यानी 3 माइनस x होल स्क्वायर
3 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस वाई होल स्क्वायर। तो हमने यहाँ पर क्या किया, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर किया, फिर y2 माइनस सॉरी x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर हमने किया। डिस्टेंस फार्मूला क्या, अंडर रूट में नहीं कर रहा हूं क्योंकि दोनों का स्क्वायर एक हम डायरेक्टली हम कर देते हैं कि as इक्वल टू 80 है बच्चों। कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर अंडर रूट आप क्यों यूज नहीं कर रहे हैं, अंडर रूट में जानबूझ के यूज नहीं करना चाहता, डायरेक्टली राइट a स्क्वायर इज इक्वल टू 80 स्क्वायर। डोंट वेस्ट योर टाइम हियर बिकॉज़ 2 मिनट का 2 मार्क्स आपको देने से नहीं। आप डिस्टेंस फार्मूला किस तरह से सॉल्व करते हो इंपॉर्टेंट नहीं वहां पर, ऑलरेडी फर्स्ट स्टेप में आपने डिस्टेंस फार्मूला लिखा है, फिर उसमें टाइम वेस्ट मत करो, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वगैरह नॉट नेसेसरी। आप डायरेक्टली लिख सकते हो as इक्वल टू 80 सो 80 a स्क्वायर इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, यू आर अलाउड टू डू दैट। टाइम सेविंग टेक्निक सही है, वेस्ट मत करो। तो अभी यहां पर भी आप क्या कर सकते हो, a माइनस b होल स्क्वायर फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म होल स्क्वायर, तो ये यहां पर क्या होगा a स्क्वायर यानी फर्स्ट टर्म होल स्क्वायर, फर्स्ट टर्म स्क्वायर 2 into ab यानी 2 into 9 into 8 यानी कितना होगा 18x, राइट। 2 into ab प्लस व्हाट b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फिर यहां पर भी a माइनस b होल स्क्वायर, a स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस 2ab यानी 2 into 2 into कितना होता है वो माइनस 2 into y, 2 into 2y माइनस 4y प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर, 3 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर यानी फिर से यहां पर वही आ गया, तो फर्स्ट टर्म स्क्वायर यानी 9, ओके 2 into ab यानी 2 into 3 into x 6x प्लस क्या हो गया b स्क्वायर यानी x स्क्वायर, राइट। फिर प्लस 2 माइनस y होल स्क्वायर, 2 माइनस y होल स्क्वायर क्या होता है फर्स्ट टर्म स्क्वायर 4, 2 into ab यानी क्या होगा 4y प्लस क्या होगा y स्क्वायर। सर हमने डिस्टेंस फार्मूला नहीं लिखा, आप तो बार बार कहते हो कि फार्मूला लिखिए, न लिखे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा क्योंकि फर्स्ट टाइम आपने ऑलरेडी लिखा है। इस स्टेप में फार्मूला लिखने के लिए कोई तुम्हारे मार्क्स कट नहीं कर सकता, मगर कोई कट नहीं कर सकता इसका मतलब क्या है, तुम उसको जस्टिफाई करो सही से। कैसे जस्टिफाई करोगे, इफ यू से as is equal to 80 then what I understand is a square is equal to 80 square and then you apply distance formula. I don't think there is any scope for any reduction of marks. Am I right? समझ आ रहा है आपको बात। नेक्स्ट आता है बच्चों, अभी इसको सिंप्लीफाई कैसे करें, ट्राई टू मेक इट इन, देखिए यहाँ पर प्लस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर प्लस एक्स स्क्वायर है, डोंट वेस्ट योर टाइम, डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो कैंसिल, यहाँ पर लाके डोंट, वो तुम्हारा अलजेब्रा का स्टेप में टाइम वेस्ट मत करो, अलजेब्रा का स्टेप के अंदर टाइम वेस्ट मत करो। फिर अगर देखिए यहाँ पर एक वाई स्क्वायर दिख रहा है और एक वाई स्क्वायर दिख रहा है, दोनों प्लस वाला है, स्ट्रेट अवे आप यहाँ पर क्या कर सकते हो कैंसलेशन कर सकते हो। क्या हो डायरेक्ट इसका कट के वर चला 2y होल स्क्वायर 2y होल स्क्वायर, या वेरी नाइस आइडिया, यस आई विल कम टू दैट आल्सो, वेरी नाइस। तो यहाँ पर ये हो गया, राइट। नेक्स्ट आप देख आंसर, ये प्लस 4 है और यहाँ पर भी क्या है प्लस 4 है, दैट कैन बी डन। माइनस 4y यहाँ पर भी है, माइनस 4y यहाँ पर भी है, तो ये दोनों कट होगा, राइट। तो अब बचता क्या है कि 81 माइनस 18x इज इक्वल टू 9 माइनस 6x, इतना ही बचता है। अब माइनस 18x इधर चला गया तो क्या होगा, और 9 इधर आ जाएगा तो 81 माइनस 9, 81 माइनस 9 इज इक्वल टू व्हाट माइनस 6 प्लस x, माइनस 6 प्लस हाउ मच 18x, तो 81 माइनस 9 कितना होगा रे 72 इज इक्वल टू हाउ मच 12x, तो डायरेक्टली मैं कर सकता हूं 12 1 12 6 x इक्वल टू 6। और जैसे अविश बल्ला ने हमारे कहा, वेरी नाइस आइडिया, ब्यूटीफुल आइडिया, उसने हमको बताया कि सर प्लस ऑफ 2 माइनस वाई होल स्क्वायर यहां पर भी है और प्लस ऑफ 2 माइनस वाई स्क्वायर यहां पर भी है। अगर ये बात आपके दिमाग में आ गई तो वंडरफुली आप 2 ही मिनट के अंदर प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। कैसे होगा, ये प्लस ऑफ 2 माइनस वाई स्क्वायर और ये प्लस ऑफ 2 माइनस वाई स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल हो गया, यानी इकट्ठे
एक साथ आपके 3 टर्म यहाँ के और 3 टर्म यहाँ के कैंसिल हो गए। तो डायरेक्टली आपको आंसर क्या आ रहा है 9 माइनस एक्स होल स्क्वायर, और 9 माइनस एक्स होल स्क्वायर यानी क्या होगा आपका 9 माइनस एक्स होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर यानी 81 माइनस 2ab यानी 18x और ये प्लस 1x स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर क्या बच रहा है 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर बच रहा है। तो 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर अगर बच रहा है तो 9 माइनस 6x प्लस क्या हो गया, सही है ना, a माइनस बी होल स्क्वायर यानी फर्स्ट टर्म स्क्वायर इज 9, 2 इंटू ए बी यानी 2 इंटू 3 कितना होता है 6 होता है, बी स्क्वायर यानी कितना है x स्क्वायर है। तो अब यहाँ पर क्या होगा 1x स्क्वायर कैंसिल होगा और क्या होगा, फिर से वही बात आ गई कि 81 माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस 6x प्लस 18x। मगर मैंने आपको पहले ही ये बात क्यों नहीं बताई, क्योंकि ऐसा कोई रूल नहीं है कि हमेशा कट होगा, हमेशा कट होगा ऐसा कोई रूल नहीं है। अगर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड रहा, इफ एट ऑल यू आर हैविंग प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड इफ यू कैन डू दैट, इट्स वंडरफुल, इट्स वंडरफुल, बट इट इज नॉट कंपल्सरी दैट इट विल बी ऑलवेज। सो माइंड माई वर्ड्स, मेरे शब्दों को गौर करना, गलतियां वहां पर होने के चांस होते हैं। परफेक्ट है तो उतरिए मैदान में, नहीं है तो उसको आप इस तरह से कीजिए। अगर मुझे आप पूछोगे तो यस, टाइम सेविंग टेक्निक है, करना चाहिए, करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आएंगे। नेक्स्ट आता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल आर एस टी। देखिए सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल आर एस और क्या दिया है आपको टी। बच्चों एस कोऑर्डिनेट तो ऑलरेडी आपके पास है, कितना है वो 9, टी कोऑर्डिनेट भी आपके पास ऑलरेडी है, क्या है वो, क्या है वो, और आर कोऑर्डिनेट भी आपके पास है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल आर एस टी। तो यस और टी तो ऊपर ही आपको मिल चुका है, नीचे ले लो इसको। और तो आप देखो आर कितना है, आर कितना है, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ आर 6 एंड 9। यहां पर बच्चे थोड़ा गड़बड़ कर देते हैं, सर सेंट्रॉइड का फॉर्मूला नहीं है। एक्चुअली सेंट्रॉइड तो पहले सिलेबस में हुआ करता था, अभी सिलेबस में नहीं है, पर फिर भी अगर आपको पूछते हैं तो थोड़ा एक्स्ट्रा फॉर्मूला आप याद रखिए। सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल आर एस टी, ये थोड़ा एक्स्ट्रा फॉर्मूला हम आपको दे रहे हैं, दैट इज x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय, ये थोड़ा एक्स्ट्रा फॉर्मूला आपको हम दे रहे हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3। तो यहां पर आप देख सकते हो कि x1 कितना है भाई 6 प्लस 9 प्लस 3 बाय 3 और 9 प्लस 2 प्लस 2, दैट इज 9 प्लस 2 प्लस 2 बाय 3। ओके बच्चों, तो 15 प्लस 3 कितना होता है रे 18 बाय 3 और ये 9 प्लस 2 कितना होता है ये 13 बाय 3। तो 9 प्लस 3 बाय 3, 9 प्लस 2 प्लस 2 बाय 3, तो ये दिस इज 18 बाय 3 और ये है 13 बाय 3। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे 16 और 13 बाय 3। इफ यू आस्क मी सर एग्जाम में अगर सेंट्रॉइड का फॉर्मूला और इक्विडिस्टेंट का फॉर्मूला के अंदर ऑप्शन पूछा गया है तो कौन सा आपको इजी लगता है? मेरे ख्याल से सेंट्रॉइड बहुत इजी है, टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है और इजी भी है। तो अगर ऑप्शन में आपको मिलता है तो ये मत कहिए सर टेक्स्ट बुक में फॉर्मूला नहीं है इसलिए हमने नहीं किया। आप इसको कर सकते हो, इट्स अ ग्रेट चॉइस फॉर यू। और if you don't have any choice, then whatever is given you have to do it. When you don't have choice, whatever is given is a choice, right? Fine.